and welcome. You're watching this special broadcast, our election special on Mandate 2022. I'm Padmaja Joshi. 24 hours from now, a little more than that, the results of this mega election will be out. But exit poll microdata has now thrown up details that will surprise you. Surprise you about the kind of strategy that is at play, not just in 2022, but for the next 5 years. Usually, remember, the BJP is accused of being a Brahmin Banya party, one of upper castes and traders. But increasingly, election data that has been analyzed by Times Now suggests that it has modeled itself. The BJP has modeled itself as the exact opposite, and the results are now showing. Today, we tell you about a massive consolidation that is happening on the ground for the Bharatiya Janata Party, a magic formula that may well deliver 2024 for it, a formula that most seem to have missed altogether. And this is not a one-off. This is not a one-year project. It's not about one election, about Uttar Pradesh or about Bihar or about Karnataka. If we take a look at how the BJP has fared in the last 8 years, where from the 2014 elections, where 53% of the Kurmi Koiris and 60% of other OBCs voted for the BJP, to 2019. But let me first take you through the data that we see of the exit polls, the Times Now veto exit poll this time around. And this will shock you. Which political party is the favored one by backward classes? Yes, the Samajwadi Party has the lead here with 38%, but look at the second choice. It's the Bharatiya Janata Party. And remember, this data also includes the Yadavs. If we fine dice the data, it shows clearly that while the Yadavs naturally go for the Samajwadi Party, go for Akhilesh Yadav, but it's the non-Yadav OBCs that overwhelmingly are now consolidating behind the Bharatiya Janata Party. And like I said, this is not a one-off. You've had the 2014 elections, the 2017 elections, and then the 2019 elections. Increasingly, the other 70-odd castes which make up the OBCs, the non-Yadav OBCs, are going for the Bharatiya Janata Party. 72% of the non-Yadav OBCs, you'll be shocked to know, have gone for the BJP in the 2019 elections in Uttar Pradesh. Exit poll data that you see over here suggests that the BJP will only consolidate its hold over this crucial data set even further. Now remember, this happens at a time when the Samajwadi Party had hoped to majorly dent the BJP from west to east by poaching influential leaders of this caste group. But it seems that even though leaders like Swami Prasad Maurya, Dara Singh Chauhan, they may have all said bye-bye to the BJP, but the 10% OBC vote, which is a decider in at least 50 seats in UP and influences 50 more, has said a huge hello to the Saffron Party. But this is not the formula alone. OBCs alone are not going to deliver 2024 for the BJP. Take a look now at how rural India has voted this time around. Exit poll data that we are going to show you from rural India makes it very clear that the Bharatiya Janata Party is the party of choice for the Garib and the Kisan, for OBCs to now the rural areas. Close to half of the people said, that 41.5% people said in villages, that we vote for the Bharatiya Janata Party. Seems quite strange for a party that till now was called one which was for a suit boot ki sarkar. It seems that the suit boot charge was largely jhoot moot. So the Garib and Pichra, is that going to decide the BJP's fortunes from here on? We have Anila Singh, spokesperson of the BJP, joining us, along with Harshvardhan Tripathi, senior journalist, national spokesperson of the Suheldev Bharatiya Samaj Party, Piyush Mishra. Remember, Om Prakash Rajbhar of the SBSP was earlier with the Bharatiya Janata Party. This time they have gone with the Samajwadi Party. They were hoping OBC vote chitak jayega. But clearly, non-Yadav OBCs have not left the BJP the way
Mr. Rajbhar would have hoped, or Swami Prasad Maurya would have hoped. Shashank Yadav, MLC of the Samajwadi Party, is also joining us live. सबसे पहले पीयूष मिश्रा जी आपसे पूछना चाहूंगी, ओबीसी का बड़ा वोट आप ले जाने वाले थे, पर ऐसा लग रहा है कि ओबीसी साफ साफ कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। पीयूष मिश्रा जी, आपकी आवाज शायद आपने म्यूट कर रखी है, अगर आप उसको अनम्यूट कर दें। जी बोलिए। तो ओबीसी उपयोगी होंगे शशांक जी, 2022 में ही नहीं 2024 में भी ओबीसी उपयोगी होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? जो पहली बात तो ये एग्जिट पोल आप दिखा रहे हो, और लेकिन जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, फील्ड में रहे, ग्राउंड में रहे, हमें तो सपोर्ट पहले से बेटर दिखाई दे रहा है। लोग 2019 की लोकसभा से भी और उससे पहले 2014 और 2017 से भी कि, और उसका मेन रीजन यही रहा है कि जो यूपी में जो 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि ये हम मानते नहीं है जब तक फाइनल डेटा आ नहीं जाएगा, पर चलिए छोड़िए, 2022 का मत मानिए, 2017 के नतीजे तो अब सब लोग मानते ही है ना। 2017 में मेजॉरिटी ऑफ द नॉन यादव ओबीसीज वेंट विद द बीजेपी। यादवों को छोड़ करके बाकी सारे ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, 2019 में भी गए, 2014 में भी गए। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि 14, 17 और 19 के कंपैरिजन में इस बार हमें ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिला है। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे। क्यों मिलेगा? वही तो मैं आपको बता रहा था, इसलिए मिला कि इस बार जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो 1,36,000 टीचर्स की जो भर्ती करी, प्राइमरी टीचर्स की, जो लगातार उसमें केंद्रीय जो सेंट्रल का बैकवर्ड कमीशन है और स्टेट का बैकवर्ड कमीशन है, उसने बिल्कुल क्लियर कट होल्ड किया कि स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें बेईमानी करी है और 23,000 से ज्यादा ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ धोखा हुआ है, और इसी चीज को इशू बनाया उन लड़कों ने लेके, और इस मैटर को पार्टी ने जो उठाया उसकी वजह से मेरा अपना यह मानना है कि 14, 17 और 19 के मुकाबले इस बार ओबीसी फ्रंट पे पार्टी को ज्यादा बेनिफिट मिला है। और साथ में जो दारा सिंह चौहान साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य जी और राजभर साहब आए हैं पार्टी के साथ। आप सच में कह रहे हैं कि 2014, 2017, 2019 सब कुछ छोड़ करके अब एक एजिटेशन की वजह से हर्षवर्धन त्रिपाठी ओबीसी वोट छोड़ देगा? नहीं, ये एक ऐसा कंसोलिडेशन है। ज्यादातर लोग हिंदू मुस्लिम, जाट मुस्लिम की बात करते हैं, पर पिछले 8 साल से बीजेपी एक ओबीसी वोट बैंक अपना बना रही है। क्या बाकी पार्टीज ने गलती कर दी इसको इग्नोर करके? हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए पद्मजा जी, ये जो सवाल है ना, इसको अगर जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं ये थोड़ा ठीक से नहीं समझेंगे तो उनके लिए मुश्किल अभी बढ़ने वाली है। 2024 में भी मुश्किल बढ़ेगी, दूसरे राज्यों में बढ़ेगी। दरअसल जो सोशल जस्टिस जिसको कहते हैं ना, सामाजिक न्याय के जो पुरोधा थे, वो हर राज्य में सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी पिछड़ी जाति है। अच्छा मुझे बताइए, कोई भी ये बताए, जैसे नैरेटिव सेट हो गया, सवर्ण है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अनुसूचित जाति क्या, दलित, ऐसा होता है क्या? कोई जाति है क्या अति पिछड़ा या दलित? नहीं है। जाति कौन सी है? जातियां अलग अलग हैं, उनकी पहचान है। अब क्या है कि जो लोग ज्यादा संख्या में एक पिछड़ी जाति में थे, जैसे यादव जाति थी, उनको लगा कि हम ही सब कुछ करेंगे, उन्होंने दूसरों का हिस्सा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको हिस्सा देना शुरू कर दिया, चुपचाप दिया, जो पॉलिटिकल हिस्सेदारी थी वो भी दी, और साथ में जिसको हम कहते हैं कि सत्ता में कैसे हिस्सेदारी और स्कीम्स के जरिए कैसे हिस्सेदारी। मुझे लगता है कि जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया और सोसाइटी है, उसने विपक्ष की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को ध्वस्त कर दिया। शशांक जी, और यहां तक लोग को लगता था ओबीसी को कि ओबीसी के नाम पे सारी सत्ता आते ही यादव हथिया जाते हैं। बीजेपी ने मौका देखा, आपसे छीन लिया वो वोट बैंक। ये देखिए, जो जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, बीजेपी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको नैरेटिव सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
एक स्टेट पार्टी और एक के सामने एक नेशनल पार्टी। और ये तथ्य जो इस बार डेवलपमेंट आया, हाँ। जो ये मोस्ट ओबीसी के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स पार्टी के साथ आए, जब ये महसूस किया गया कि बीजेपी केवल जो है लिप सर्विस कर रही है ओबीसी के साथ, इसलिए एक फ्रंट पे आए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले से बहुत बेटर रिजल्ट आएगा। लेट द रिजल्ट कम, आप आने तो दो। अच्छा, ये आपको नैरेटिव लग रहा है? तो जो पिछले 3 इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो भी पूरा नैरेटिव था। इससे पहले कि मैं पीयूष जी के पास जाऊं, जल्दी से आपको दिखा देती हूं कि किस तरीके से केंद्र में एट द सेंटर एंड एट द स्टेट लेवल द बीजेपी हैज assiduously cultivated. Take a look at the kind of outreach Yogi Adityanath at the level of the state has done to OBCs. State was prepared to include 39 castes in the list of other backward castes. In addition to that, there was a cabinet expansion, 175 MLAs, MPs from OBC. Dalits also hold a social outreach. They had a massive OBC Sammelan. When the September expansion happened, 6 OBC and Dalit members were also given births. पीयूष जी, हिस्सेदारी मिली, और यहां तक कि जो अभी 7 पार्टी ओबीसी हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनका नाम ही हिस्सेदारी मोर्चा रखा है कि हम देंगे असली हिस्सेदारी। सिर्फ यादवों की सत्ता नहीं होगी, हिस्सेदारी की सत्ता होगी। पीयूष जी देखिए मैडम, पहले तो मैं आपको बता दूं और न्यूज ये चलवाइए कि अभी 15 मिनट पहले मैं खुद और हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय अरुण जी ने पहाड़िया मंडी वाराणसी पर 2 गाड़ी ईवीएम मशीन को पकड़ा है, खुद अपने हाथों से। अभी बवाल बहुत लंबा हो रहा है, मैं अभी उसको छोड़ के तुरंत आपके पास आया हूँ, इसीलिए कि अभी आपके संज्ञान में आ जाए। अच्छा। भाजपा जो है, मैं इस समय बनारस में मौजूद हूँ और आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि केवल अपनी हार के नाते अब ये मशीन बदलवा रही है, वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन बदलवा रही है। 2 जिप्सी में भर के हमने खुद पकड़ा, मैंने खुद पकड़ा है। अच्छा। लाइव वीडियो चला भी है और अपने रिपोर्टर को आप भेजिए कि इसको भी कवर करें। अच्छा, जहां तक की बात आप हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में बाबा जी की 5 साल की सरकार थी, उठा के देख लीजिए इनके 80 जिले में कितने डीएम किस बिरादरी के थे, कितने कप्तान किस बिरादरी के थे, कितने थानेदार किस बिरादरी के थे। हाँ। नौकरी की बात जब आती है, 69,000 शिक्षक भर्ती की, पिछड़ों का जो है आरक्षण कहाँ चला जाता है, तब इनके मुंह पर जुबान नहीं निकलती। पहले तो ये खूब कहते थे कि हमने खूब पारदर्शिता से भर्ती करी, उसके बाद बाबा जी खुद ही। अगर हिस्सेदारी की बात करें, आपको एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा बताती हूं, आप भी सुनिएगा शशांक यादव जी। एक एनालिसिस की गई कि जो मंत्री हैं अखिलेश यादव की कैबिनेट में और योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में, अखिलेश यादव की कैबिनेट में ओबीसी शेड्यूल कास्ट के जो मंत्री थे योगी आदित्यनाथ के मुकाबले कम थे। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में ज्यादा हैं, ये आंकड़े हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि आप उन चीजों को जो जोड़ने की आप कोशिश कर रहे हो कि उस पीरियड को लेकर जो अभी जो कर रहे हैं कंप्लीटली, मैं कह रहा हूं लिप सर्विस है जो इन्होंने बनाया, अभी ये सब हटा दिए जाएंगे। अभी जब दूसरे चुनाव होंगे तो वहां पर हटा के वहां के कॉस्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से नए, यहाँ तमाम इस्तीफे लिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी। अच्छा, ये लोग इतने, आपने भी गिनती दिखाई कि बीजेपी में 175 से ज्यादा एमएलए, एमपी तो मिनिस्टर्स रहे, तब जाके स्टेट बैकवर्ड कमीशन और सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन को क्यों कहना पड़ा कि बैकवर्ड्स के साथ जो है। अनिला सिंह, अभी तक का सब कुछ नैरेटिव था और एग्जिट पोल के नतीजे गलत हैं, ये सिर्फ लिप सर्विस है। नहीं, सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन और स्टेट बैकवर्ड कमीशन अगर स्टेट गवर्नमेंट को क्लियर कट कह रहा है कि आप बेईमानी कर रहे हो तो इसके कोई मायने है कि नहीं है? सर, सब कुछ के बावजूद अभी भी ये जाति वर्ग जो है वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं और लगातार इलेक्शन दर इलेक्शन कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं। पॉइंट इज कि ये सिर्फ इंक्रीज होते जा रहा है और अगर ये इंक्रीज होता रहा तो 2024 में उत्तर प्रदेश ही नहीं बाकी प्रदेशों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा मानना है कि इस बार यादव जी बैकवर्ड का शेयरिंग सबसे ज्यादा होगा। चलिए 10 तारीख को बात करेंगे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। अनिला सिंह, in 2 days results will be out, so whatever you are claiming, if you win then you can say that yes, whatever we claimed that was absolutely correct, and if you get defeated, which you are going to be defeated, everybody knows it very well. Now the exit polls are also saying the same thing which we had been saying continuously, that in Uttar Pradesh there is no place for political parties like Samajwadi Party. और लिख के रख लीजिए यादव जी,
10 तारीख को आपकी यानी कि समाजवादी पार्टी की हार की जो अर्थी है ना, वो 4 कंधों पे निकलेगी। ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य, आप लोगों की हार की अर्थी निकलने वाली है। नहीं, और समझ लीजिए, राम का नाम हमेशा सत्य होता है, राम का नाम आप लोगों ने खराब करने का प्रयास किया है। So let me come in, sir. I did not interject in between, but you must understand one thing, that since Yogi Adityanath ji came to power, he had been working day in and day out for the upliftment and betterment of people of Uttar Pradesh, and especially if I talk about OBC. 2014, 17, 19 तीनों में देख लिया है कि ओबीसी ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। और इस बार तो महिलाएं एक कम्युनिटी बनकर सामने आई हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। महिलाओं के बारे में हम अलग से बात करेंगे, पर ये गांव और ओबीसी का जो एक ब्लॉक है बहुत दिलचस्प है। और शशांक जी, आप ये भी मानेंगे कि इन अ वेरी टैक्टिकल मूव एक्चुअली द बीजेपी हैज फील्डेड एन ओबीसी लीडर, एन ओबीसी मिनिस्टर अगेंस्ट योर पार्टी चीफ अखिलेश यादव एज वेल फ्रॉम करहल। In fact, SP Singh Baghel is joining us live. Sir, I want to start by asking you about the kind of results that you are seeing. यहाँ पर जो सीटें दी जा रही हैं, 300 पार तो मिल नहीं रही हैं आपको। हाँ, निश्चित तौर से सरकार बन रही है। पहले की तरह हो सकता है 322 तक के जादुई आंकड़ा को हम लोग ना छू पाएं, लेकिन सभी एग्जिट पोल में कोई भी ऐसा नहीं है जो 203 से जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक मिले होते हैं उससे कम कोई नहीं बता रहा है। और सभी एग्जिट पोल का अगर औसत निकालें, क्योंकि कोई ज़्यादा बताता कोई कम बताता, अगर एवरेज निकालेंगे तो वो 250 के आसपास तो आ ही रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे एनडीए की। और इसमें केंद्र सरकार की मैंने देखा कि मैं 7 राउंड में स्टार प्रचारक था जी। हम कुछ ही लोग थे जो 7 राउंड में जिनकी डिमांड थी। मैं स्वयं करहल से चुनाव लड़ रहा था, इसके बावजूद मैं बहुत सी विधानसभाओं पर गया और अपना चुनाव के बाद तो उसी रात चला गया। तो आज लौट के आया हूँ मैं जब प्रचार बंद हुआ है। तो मैंने देखा कि केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं खास तौर से और राज्य सरकार की योजनाएं और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर था मुख्यमंत्री जी का, उसको लेकर के। और दूसरा जी, तो गरीब कल्याण योजना आपको लग रहा है कि आपके लिए फायदेमंद रही है, पर करहल में खास तौर पर, क्योंकि वहां पर यादव वोट भी बहुत है, ओबीसी वोट भी बहुत है, कौन ज्यादा डोमिनेंट रहेगा? हाँ, जहां तक करहल का है, ये तो ईवीएम मशीन में सब बंद है, लेकिन 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो ये बता रही हैं कि समाजवादी पार्टी वहाँ फंसी हुई है और अथवा चुनाव हार रही है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे नॉमिनेशन से पहले अखिलेश यादव जी घमंड से भर करके एक बात कह के गए थे कि अब वो 40 दिन बाद चुनाव का सर्टिफिकेट लेने 10 मार्च को आएंगे। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी उसके कार्यकर्ताओं ने और मैंने उस इलेक्शन को 6 दिन में इतना गर्म कर दिया था कि 6 तारीख को, माने 6 फरवरी को ही श्री अखिलेश यादव जो 6 दिन पहले मना करके गए थे उनको आना पड़ा। ये एक बड़ी घटना है, अथवा किसी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा की गई सबसे बड़ी लफाजी है जी। आपने अखिलेश जी की बात की, उन्हीं को लेकर के एक इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है ईवीएम को लेकर के, शायद जो अभी एसबी के मेंबर बात कर रहे थे उसी को लेकर के। जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, उन्होंने भी कहा कि वाराणसी में उन्होंने कुछ ईवीएम मशीनें पकड़ी हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, उन्होंने अपने कैडर को बोला है कि वो सतर्क रहें क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। अभी हम ओबीसी वोट की भी बात कर रहे थे, ईवीएम की तो बात हो ही रही है, पर बघेल साहब, जो कई बड़े नेता ओबीसी के अभी आपको छोड़ करके गए हैं, उसके चलते पार्टी को धक्का लगा है, उस पर आपके परिणामों पर कुछ असर पड़ा है? हाँ, नहीं, कोई बहुत बड़े नाम नहीं गए हैं। अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा मानते हैं तो केशव मौर्य उनसे भी बड़े हमारे पास उसी समाज के डिप्टी सीएम साहब हैं, ठीक है। अगर दारा सिंह चौहान को आप लोग बड़ा नाम मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने इसी समाज से एक राज्यपाल भी दिए हैं। अगर आप ओम प्रकाश राजभर को बड़ा मानते हैं तो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी हमारे पास हैं और कई लोग हैं। खैर, मेरा कहने का मतलब है फिर भी नाम अगर गए हैं तो उनके साथ वोट नहीं गया और लोग समझ गए कि ये अवसरवादिता रही है, क्योंकि आखिरी दिन तक जो है ना, आखिरी दिन तक सिगरेट का मजा लो आखिरी कस तक और उसके बाद कहो कि वो अच्छी नहीं थी, हैं, या आखिरी शिप तक कोई कॉफ़ी पिए और लास्ट में कहे कि जी कॉफ़ी अच्छी नहीं थी। ऐसा ही इन सो कॉल्ड बड़े नामों ने जाने पर सबकी भाषा एक सी थी, स्क्रिप्ट एक सी थी
और यह सबने तय किया था। वो एक राजनीति चुनाव से पहले भय, भगदड़ और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जो अल्पज्ञानी राजनीतिक में होते हैं, जिनको अपने पर भरोसा नहीं होते हैं, उस भय, भगदड़, भ्रम में वो भाग जाते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सघन दौरा किया। केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं रही हैं। जहां पर प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंच पाए, वहां प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद के रूप में, चाहे शौचालय दिखाई पड़ा हो, आवास दिखाई पड़ा हो। जब मैं किसी गरीब को दाल चावल खाते हुए बघेल साहब, आपने भय भगदड़ की बात की है। अब किसका भय होगा और भगदड़ किस तरफ होगी, वो कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। आपसे फिर उस वक्त बात होगी। फिलहाल हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ऑल्सो टू बोथ जेंटलमैन एंड अनिला सिंह फॉर हैविंग जॉइन्ड मी। रिमेंबर, वी आर गोइंग टू डू माइक्रो एनालिसिस ऑफ व्हाट मैसेज द डेटा इज गिविंग अस, एंड ऑफ कोर्स March 10 with Times